Bismillahirrahmanirrahim. Today the topic is love and divine poetry. Love and divine poetry, a classical poetry and English part 1 by John Donne. John Donne was born in 1572 and he died in 1631. It means that the age was 16th century, 17th century. 17th century is the mature age for his poetry, for his verse. At the same time, you can see that this age is the Elizabethan age, because Elizabethan died in 1603. And after Elizabethan, there was James age. King James were over there. So, if there will be any question about write down the qualities of poetry of Elizabethan age and James age, then you can think that in James age or in Elizabethan age, there is minimum John Donne is also in this age. Okay. They are same age of the Shakespeare and Marlowe. Marlowe was also in this age. Shakespeare was also contemporary of John Donne. You know that the Marlowe has done a lot of change in the dramatic technique. Shakespeare has produced his own tragedy that is called Shakespearean tragedies over there. It means that this whole age was a very vital age, and that was a very important age, because in this age the Django poets and the dramatists were over there. And John Donne is also one of them. So first of all, we will discuss about the John Donne's life, and after this I will discuss about his poetry, and after this we will read 2 poems of John Donne's poetry. I will also tell you the different themes and different poems of the John Donne. Clear? Now, as concerned to John Donne, he was the son of an iron merchant. His father was an iron merchant. He has a business of iron, setup of iron wasn't. And he was fortunately the nephew of a dramatist. He was the brother of his mother. John Donne की mom का जो भाई था वो dramatist था. Okay. He was also student at Cambridge, but he didn't gather his degree from there because there was some conflict in the article. कुछ कानून पे जहाँ पर उसने yes में जवाब देना था, उस आर्टिकल पर ये जवाब में कैम्ब्रिज को उसने खैराबाद किया है. उसके बाद इसने और स्टडी किसी और फील्ड में, लॉ में चला गया, लॉ को स्टडी किया, मेडिसिन को बहुत ज़्यादा स्टडी किया, रिलीजन को स्टडी किया, फिलॉसफी को स्टडी किया. रिलीजन के अंदर काफ़ी हद तक इन्वॉल्व रहा और किसी चर्च के अंदर ये एज अ पास्टर भी वर्क करता रहा, काम करता रहा है. इट मीन दैट जॉन डन का नॉलेज जो है वो वसी है. उस वक्त की जो मुख्तलिफ किस्म की डिस्कवरीज हो रही हैं, मुख्तलिफ किस्म का नॉलेज जो सामने आ रहा है, उन तमाम अहम तरीन नॉलेज के अंदर वेल वर्स्ड है, अच्छा पढ़ा लिखा है, लॉ भी पढ़ा, मेडिसिन को भी स्टडी किया, फिलॉसफी को भी, रिलीजन को भी स्टडी किया है एट द सेम टाइम. In those days, there was also a conflict between the state and the religion. State और religion के दरमियान conflict था. Every person was confused that to whom he has to favor. कि किसको फेवर देनी है, रिलीजन को, स्टेट को. कुछ किंग के खिलाफ थे, कुछ चर्च के खिलाफ थे. ये एक तब्दीली की एज थी. इसीलिए इस एज को कहते हैं एज, रेनेसां एज कहते हैं, रेनेसां एज. There was too much changes over there. रेनेसां का मतलब होता है तब्दीली. अच्छा, आइए डिस्कस करते हैं. जॉन डन की जो एज है ये तब्दीली की एज है. क्यों तब्दीली की एज है? 16th सेंचुरी के अंदर कोलंबस ने डिस्कवर किया था अमेरिका को. दैट इज द एज ऑफ डिस्कवरी. एट द सेम टाइम पीपल वर डिस्कवरिंग आवर इंडिया. समंदर के अंदर सेलर सफर कर रहे हैं, अल्केमिस्ट हैं, केमिकल कुछ नए क्रिएट कर रहे हैं, सोना बनाने की कोशिश की जा रही है. इसके अंदर बहुत नॉलेज, ज्योमेट्री, दूसरे नॉलेज, मैथमेटिक्स, फिलॉसफी, एस्ट्रोलॉजी, बहुत सारे नॉलेज सामने आ रहा है. उनकी ब्रांचेस तकसीम हो रही हैं और मुख्तलिफ किस्म के नॉलेज हैं. तब्दीली भी आ रही है नॉलेज के आने के साथ साथ. लोगों के जहन के अंदर तब्दीली, उनकी सोच में भी तब्दीली आ रही है. इस एज को हम रेनेसां कहते हैं, रिवाइवल की एज, तब्दीली की एज, वापस आने की एज. किस चीज के वापस आने की एज? अक्ली सोच के वापस आने की एज. लोग अक्ली जरिए से सोच रहे हैं, दोबारा विजडम की तरफ आ रहे हैं वापस. ये डिस्कवरी की एज, एज आई डिस्कस दैट. ओके. After this,
Now I'm coming. That was the age of the John Donne. Now I'm coming to discuss about the poetry of John Donne, specially. John Donne की पोएट्री कैसी है? जॉन डन की पोएट्री कैसी है, इसको डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करते हैं जॉन डन से पहले पोएट्री कैसी थी, स्पेशली पैटरैक। पैटरैक कहाँ पर आया था, याद है? इटली में। ही वॉज द पोएट ऑफ इटली एंड ही वॉज strong poet of Italian language. Clear? There were two major poets who bring sonnet from Italy, from Petrarch. They were Surrey and White. Surrey and White आ गए, उन्होंने आकर sonnet को इंट्रोड्यूस करा दिया इंग्लिश के अंदर। इंग्लिश में पोएट्री होना शुरू होगी, बट दिस पोएट्री वॉज पैटरैकन पोएट्री, क्योंकि ये पैटरैकन तर्ज पर बनाई गई थी, सारी की सारी पैटरैकन पोएट्री थी। तो डन जब आया है, सूर्य एंड वाइट वहां से जा चुके हैं, मर चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। अब पोएट्री जितने भी लोग कर रहे हैं उस वक्त के, वो पैटरैकन पोएट्री कर रहे हैं। पैटरैकन पोएट्री किस तरह की थी? पैटरैकन पोएट्री के अंदर वैमेन को एज अ गॉडेस ट्रीट किया जाता था। जो लवर होता था वो बहुत ज्यादा पैशनेट होता था, जज्बाती होता था। वर्शिप की हद तक वो मोहब्बत करता था वैमेन से, डेमी गॉडेस उसको कंसीडर किया जाता था। Okay. Just yes. वालेकुम अस्सलाम, जल्दी से बोले। कौन बात कर रहे हैं? कौन बात कर रहे हैं बेटा? डॉक्टर बेटा 8 बजे के बाद। नाउ that was the पैटरैकन पोएट्री वाज ओवर देयर। ओके, जॉन डन इवन के जो पोएट्री उसने की है वो पैटरैकन मिजाज में तो है, पैटरैकन मूड में तो है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा तब्दीलियां हैं। हम ये 100% तो नहीं कह सकते कि दैट इज नॉट अ पैटरैकन पोएट्री, दैट इज क्वाइट डिफरेंट, बट वी कैन से दैट देयर वाज अ ग्रेट रेवोल्यूशन इन द पोएट्री। पोएट्री के अंदर बहुत ज़्यादा तब्दीलियां जरूर लेकर आ गया है। क्लियर? जैसे कि पैटरैकन पोएट्री के अंदर वैमेन को ट्रीट किया जाता था एज अ डेमी गॉडेस, उसको देवी कंसीडर किया जाता, उसकी वर्शिप की जाती। तो पोएट ऐसा नहीं करता। पोएट के मूड पर डिपेंड है कि वो अपनी बिलवेड को गॉडेस कंसीडर कर ले या उसको लेस देन गॉड, उसे एक बकरी की तरह कंसीडर कर ले। वो उसके मूड पर डिपेंड करता है। क्लियर? एंड सेकंड थिंग इज दैट ही इज टू मच फ्रैंक, नॉट टू मच सीरियस, एज पैटरैकन पोएट्री इज टू मच सीरियस, ही इज अ फ्रैंक वन। आर्गुमेंटेटिव टून है, जो बात में आर्गुमेंटेटिव बात करता है। कंसीट का इस्तेमाल पहले भी किया जाता था, कंसीट का इस्तेमाल ये भी करते हैं। कंसीट क्या होती है ये मैं इन पर आकर फिर डिस्कस करता हूँ। तो हमें ये कंसीडर हो गया इस पॉइंट में कि डन जो था एट द सेम टाइम ही वाज पैटरैकन, बट ही ब्रॉट अ लॉट ऑफ चेंज इन द पैटरैकन पोएट्री। बहुत सारी नई चीजें इंट्रोड्यूस करा दी है पोएट्री के अंदर और पोएट्री का मूड तब्दील कर लिया है। हम इसे कह सकते हैं कि ही वॉज ग्रेट रेवोल्यूशनरी इन द फॉर्म ऑफ पोएट्री, द टेक्निक ऑफ पोएट्री रेवोल्यूशनरी था। नाउ हिज पोएट्री, ऑल पोएट्री इज अ मेटाफिजिकल पोएट्री। ही इज अ मेटाफिजिकल पोएट। दैट इज द फर्स्ट टाइटल क्वेश्चन ऑफ दिस होल सिलेबस ऑफ डन। डन के तमाम सिलेबस का सबसे बड़ा क्वेश्चन मेटाफिजिकल पोएट्री है, यानी कि पोएट जो है मेटाफिजिकल पोएट है। मेटाफिजिकल पोएट कौन से होते हैं? आइए देखते हैं। पैशनेट होते हैं, बहुत ज़्यादा पैशन होता है उनकी पोएट्री के अंदर, एक बात। दूसरी बात, इंटेलेक्चुअल टून होती है उसके अंदर, अक्ली टून होती है उसके अंदर, इंटेलेक्चुअल बात करते हैं। तीसरी बात है आर्गुमेंटेटिव होते हैं। मेटाफिजिकल जो पोएट होते हैं आर्गुमेंटेटिव होते हैं, इमेज का इस्तेमाल करते हैं, छोटे छोटे तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं, रियलिस्टिक भी होते हैं एट द सेम टाइम। उसके बाद अच्छा आर्गुमेंटेटिव हो गया। अच्छा ओके, फ्रैंक होते हैं और विट का इस्तेमाल करते हैं। विट मीन अकली मजाक करते हैं, हल्की फुल्की ज़हनी मजाक करते हैं जिसके अंदर अकल की कोई बात भी होती है। यूज ऑफ कंसीट होती है, जबरदस्त किस्म की कंसीट का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट इज कंसीट? नाउ आपने मेटाफिजिकल पोएट्री समझ ली। देखो मेटाफिजिकल के टर्म को मजीद एलाबोरेट करते हैं। फिजिकल, व्हाट इज द मीन ऑफ फिजिकल? दिस चेयर इज फिजिकल, आई एम फिजिकल, दिस tank is physical, this desk is physical. These are the physical things.
which things are not physical, what we will say to it, उसको क्या कहेंगे? उसे कहेंगे मेटा, बियॉन्ड यानी कि दूर, फिजिकल से दूर, फिजिकल से हट के, जैसे कि फेरीज, परियां, जिन, उसके बाद देवता, ये सारे क्या है? मेटाफिजिकल है। क्लियर? ये पोएट्री जो करता है ये मेटाफिजिकल पोएट्री है। जैसे कि मेटाफिजिकल के एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। पोएट कहता है, सूरज तू बेवकूफ है, तुम्हें पता ही नहीं है कि कहां पर अपनी शॉ को फेंकना है और कहां पर नहीं फेंकना। हम लवर सोए हुए यहाँ पर, यानी कि मैं और मेरी बीवी एंड मोर, हम दोनों सोए हुए हैं, तू हम पर बीन्स फेंक रहा है, सूरज की अपनी शॉएं फेंक रहा है सुबह सवेरे, ये बताने के लिए कि सुबह हो गई है। टाइम का हमें एहसास दिलवा रहे हो, तुम्हें पता नहीं है कि लवर का कोई टाइम नहीं होता। क्लियर? अब ये किससे बात कर रहा है? कहना क्या जाता है कि लवर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी बोथ आर लवर्स एंड वी आर ट्रू लवर्स, दैट इज ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, बट this thing is metaphysical, that is beyond the physical. How one can discuss with the sun and he can say to sun that you are a busy old fool. सन को कैसे कोई कह सकता है तो बेवकूफ है, तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हें सेंस ही नहीं है। तो ये क्या है? मेटाफिजिकल पोएट्री हो गई है। मैं एक और पोएट्री पोएम देखिए उसकी, एक्सप्रेसिव। मैं और मेरी बिलवेड बैठे हुए हैं और हमने आंखों में आंखें डाली हुई हैं, हमारी सोल बाहर निकल के आपस में मिल रही है और वो गुफ्तगू कर रही हैं, डिस्कस कर रही हैं और आपस में जुड़ी हुई हैं हमारे ऊपर। अब सोल किसी ने देखी नहीं है, जुड़ी हुई है, कैसे जुड़ी हुई है? दैट इज मेटाफिजिकल डिस्कशन। क्लियर? मेटाफिजिकल क्लियर हो गया कि वो बातें इस तरह से करता है, कुछ जमती सी बातें हैं तो बियॉन्ड द फिजिकल चला जाता है। क्लियर? ओके। यूज ऑफ कंसीट, कंसीट का इस्तेमाल। मेटाफिजिकल जो पोएट होते हैं वो कंसीट का बड़ा जबरदस्त किस्म का इस्तेमाल करते हैं, और जो कंसीट डन ने इस्तेमाल किया दैट इज इंटेलेक्चुअल कंसीट्स आर ओवर देयर, बड़े अक्ली किस्म के कंसीट इस्तेमाल है। कंसीट होता क्या है? कंपैरिजन को कहते हैं। कैसे कंपैरिजन? देखो कंपैरिजन मैं कर रहा हूं, डेविस इज अ लायन, डेविस लायन है, शेर है, ये कंपैरिजन हो गया ना डेविस लायन के साथ, लेकिन इसको कंसीट नहीं कह सकते। इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे मेटाफोर। डेविस लायन है, मेटाफोर है। अच्छा मैं कहता हूं डेविस इज लाइक अ लायन, डेविस लायन की तरह है, बट दैट इज नॉट कंसीट। कंपैरिजन है, कंसीट नहीं है। बानी दो बार लिखती है फिर हाथ उठा लेती है, ये भी कंसीट नहीं है। ठीक है, ओके। तो ये कंसीट नहीं है। अच्छा ये क्या है? ये सिमिली है। Just excuse me for 5 minutes now. Give me pencil and अल्लाह की बड़ी रहमत है।
Sorry for that. Okay. Now, conceit. And we have discussed two things. Davis is lion, that is metaphor, that is not conceit. Conceit का मतलब कंपैरिजन नहीं होता है, लेकिन कंपैरिजन को कैटेगरी बना रहे हैं. डेविस इज लाइक अ लायन, दैट इज सिमिली, दैट इज नॉट कंसीट. ये कंसीट नहीं है. डेविस और उसकी बिलवेड, डेविस और उसकी बिलवेड वो कैंपस की तरह है, प्रकार की तरह है. दैट इज अ कंसीट. अब ऐसा सोचने पर मजबूर हो जाता है कि डेविस और उसकी बिलवेड जो है ये कैंपस की तरह है. ये कैसे है? ये क्या है? कैंपस और लवर का क्या ताल्लुक बनता है, क्या कांटेक्ट है? अच्छा, फिर इसकी आर्गुमेंटेशन ये है कि ये बिलवेड है, ये लवर है. ठीक, दो उंगलियों की तरह, एक बिलवेड एक लवर. कैंपस के दो पार्ट्स हैं, एक सेंटर जिसको पेज के ऊपर टिका देते हैं, रख देते हैं. दूसरा हिस्सा उसका खुलता है पेंसिल वाला, दायरा लगाने के लिए. लवर जो है हमेशा सफर पर जाता है, वो गैलेंट होता है, वो नाइट होता है, वो जंगजू होता है, वो बिजनेस करता है, वो काम करता है, वो बाहर जाता है और अपने काम काज करने के बाद जब दायरा मुकम्मल कर लेता है फिर आता अपनी बिलवेड के पास है. और जब बिलवेड के पास है दोनों आपस में मिल जाते हैं, फिर दोबारा उनकी मीटिंग होती है, दोबारा वो करीब आ जाते हैं एक दूसरे के. अब व्हाट इज दिस? दिस इज समथिंग विजडम. यहाँ इसके अंदर विजडम है, आर्गुमेंटेशन है. लेकिन सबसे अहम बात यह है कि दैट इज फार फेच्ड आइडिया. डेविस इज मून,
दैट इज नॉट फॉर फेच्ड आइडिया, सिंपल बात है, दैट इज ग्लोइंग, मून चमक रहा है, वो भी खूबसूरत है, इसका मतलब ये है। डेविस इज लायन, मीन के डेविस जो है वो बहादुर है, बट लवर एंड द बिलवेड इज, लवर एंड द बिलवेड आर बोथ आर लाइक द टू पार्ट्स ऑफ, टू लेग्स ऑफ कंपास। जब ये कहेंगे तो सोचने और मजबूर हो जाएंगे ये क्या है, वेरी डिफरेंट है, तो इस चीज को हम कंसीट कहते हैं, यानी कि वो कंपैरिजन जिसमें फॉर सच आइडिया हो उसको कंसीट कहेंगे। और हमेशा याद रखें कि कंसीट जो होती है वो इंतहाई फैंटास्टिक होती है, बनावट में बहुत फैंटास्टिक होती है। मैंने आपको एक तो एग्जांपल दी है कंसीट के फॉर फेच्ड आइडिया की, आर यू फॉलोइंग? कंसीट के फॉर फेच्ड होने की एक तो एग्जांपल दी है। अब देखिए फैंटास्टिक होने की एग्जांपल लेता हूं। सपोज लवर की डेथ हो गई है, लवर लिख रहा है कि मेरे मरने के बाद माय बिलवेड व्हेन यू विल कम टू माय ग्रेव, जब मेरी कब्र पर तुम आओगी मेरे मरने के बाद, और नंगे पांव तुम मेरी कब्र के साथ साथ चलती जाओगी, जहां जहां चलती जाओगी कदम उठाओगी वहां से फूल उगते आएंगे, लिली फ्लावर्स, डैफोडिल्स, रोजेस, ये सारे फूल, जहां जहां कदम धरोगी वहां वहां फूल निकलते रहेंगे। नो कंसीडर इट, किस तरह की कंसीट है, कंपैरिजन किस तरह का है, उसके चलने के नीचे फूल निकलते आएंगे, महक खुशबू तुम्हारे आने के साथ ये सारी खुशियां वाबस्ता हो जाएंगी, मेरी कब्र पर भी फूल निकलेंगे। ये फैंटास्टिक है, ये आइडिया बहुत ज्यादा फैंटास्टिक है। बिलवेड को कह देना कि माय बिलवेड इज लाइक द माइन ऑफ गोल्ड, सोने की कान है। अब ये फैंटास्टिक भी है, फार फेच्ड भी है, इट मींस शी इज वेरी प्रीशियस, तो बहुत प्रीशियस है। तो ये कंसीट जो फार फेच्ड भी हो, फैंटास्टिक भी हो, कंपैरिजन, ऐसा कंपैरिजन जो फार फेच्ड हो, फैंटास्टिक हो अपनी अप्रोच में, उसे हम कहेंगे दैट इज कंसीट। क्लियर? नाउ जॉन डॉन्स पोएट्री, सिलेबस में नियर अबाउट 30 के करीब पोएम्स आपकी शामिल की गई हैं। देयर आर 2 पोर्शन इन योर पोएट्री, one is love poetry and the second portion is divine poetry. Okay? लव पोएट्री से मुराद ये है कि उसकी, जिसमें उसने लव की बातें की हैं, और ये मोस्टली पोएम्स जो हैं उसने अपने बिलवेड को डेडिकेट की हैं। उसकी बिलवेड का नाम एन मोर था, एन मोर के लिए उसने लिखी है, और एन मोर उसकी हयात में ही मर गई थी बेचारी। क्लियर? और उसकी मौत के बाद भी कुछ पोएट्री की है वो एन मोर के बाद। कुछ पोएट्री ऐसी है जो कि उसने दूसरी खवातीन के बारे में की है, जैसे कि उस दौर की बहुत फेमस पर्सनैलिटीज थी और रॉयल फैमिली से कुछ लोग थी। वैसे भी जॉन डन का जो पर्सनल लाइफ है दैट इज नॉट रिमार्केबल वर्चुअस, वो वर्चुअस नहीं है। ही वॉज अ फ्रीक्वेंट विजिटर ऑफ वेमेन, फ्रीक्वेंट विजिटर ऑफ वेमेन। इसका मतलब ये है कोई हिसाब नहीं है। क्लियर? ओवरऑल पोएट्री के बारे में देखा जाए, उसके वर्क के बारे में, ही इज रियली रिमार्केबल पर्सन। दूसरे पोर्शन में डिवाइन पोएट्री है। डिवाइन पोएट्री इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप इस पोर्शन को छोड़ भी देंगे इट्स नॉट अ मैटर। अदरवाइज 2 पोएम्स हैं इसकी, बैटर माय हार्ट, थ्री फेस्ड गॉड, एक वो है पोएम इसकी, एक इसका और डिवाइन एक और सॉन्ग भी है, वो कर लेंगे, दैट विल बी इनफ। अदरवाइज यू कैन लीव दिस टॉपिक। पहले पोएम्स को डिस्कस करूंगा कि इसकी कितनी पोएम्स है, उसके बाद बताऊंगा कि इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कितने हैं, उसके बाद मैं आपको इसकी पोएम्स पढ़ा दूंगा, 2 पोएम्स पढ़ा दूंगा अगर लाइट होगी तो। नहीं होगी तो मैनेज करेंगे, देखेंगे अगर आपके पास मैनेजमेंट है सारी तो फिर मैं पढ़ा दूंगा। ओके, नाउ फर्स्ट पोएम इसकी लव पोएम के अंदर पहली पोएम है गुड मैरो, MORROW, गुड मैरो। यस, नहीं, होमर और विल्जन ने जो पोएट्री लिखी थी वो एपिक पोएट्री थी। आप मिक्स कर रहे हैं मिल्टन को, जॉन मिल्टन नहीं, ये मेटाफिजिकल पोएट्री कंटेम्परेरी और भी हैं पहले, बट दे आर नॉट टू मच रिमार्केबल। वो इसके बाद एक पोएट जरूर है जो कि रिमार्केबल हो सकता है।
There is no garden, no building. What is you are doing? Where is your eye? कहाँ है तुम्हारे यहाँ लिखे हुए? मिस्टेक कहाँ है? हमारे दृष्टिया बेटा मेटाफिजिक्स में देखें, गौर देखें, व्हाट इज ओवर देयर, दैट इज क्वाइट डिफरेंट. एक अदला शायद मिक्स हो जाए, लेकिन सारा तो क्वाइट डिफरेंट है. इंटेलेक्चुअल नहीं है वो, आर्गुमेंटेटिव नहीं है, तो उसके लिए इमेजेस का नहीं है, वहाँ पर सिमिली का इस्तेमाल है. ये रियलिस्टिक है, वो रियलिस्टिक की कोई ऑप्शन नहीं है वहाँ पर. वो रियलिस्टिक बिल्कुल नहीं होती है पोएट्री, फ्रैंक नहीं होती, वो इंतहाई सीरियस होती है. विद टकली मजाक तो होती ही नहीं है. आपने तो कमाल कर दिया है. Okay, that's right. Okay, now, yes, I was discussing Good Marrow. Good Marrow पोएम में कहता है, मेरी बिलवेड, जब तक हम मोहब्बत में मुब्तला नहीं हुए थे, जब तक हमने मोहब्बत नहीं की थी, हम ऐसे थे जैसे सदियों से सोए हुए लोग हों. हम ऐसे जैसे बच्चे होते हैं छोटे, और वो नई नई खुराक खानी शुरू करते हैं, बस छोटे मासूम बच्चे होते हैं जैसे. हम वैसे जब तक मोहब्बत नहीं की थी, और जब हम मोहब्बत में इन्वॉल्व हुए हैं तो अब हम जागे हैं, अब हम बड़े हुए हैं, अब हमारी सुबह हुई है. एंड गुड मॉर्निंग. अपनी बिलवेड को कहते हैं गुड मॉर्निंग, कि आज सुबह हुई है हमारी, आज हम जागे हैं, आप बड़े हुए हैं आज, तो गुड मॉर्निंग उसे कहा है अपनी बिलवेड. ये है गुड मैरो. गुड मैरो का मतलब गुड मॉर्निंग. आपको मैंने याद है बीए के अंदर मैंने गुड मैरो का लफ्ज़ लिखा है. ठीक है बेटा. तो उसके बाद है सनराइजिंग. कोई बात नहीं, मैं समवन आई एम गोइंग टू डिस्कस. जी बेटा. ओके, नाउ देयर इज सनराइजिंग. सूरज, तुम बेवकूफ हो जो तुम मुझे जगाने आ गए और मेरी बिलवेड को जगाने आ गए हो. हमारा कोई वक्त नहीं होता, कोई टाइम टेबल नहीं होता हमारा. हमें टाइम बताने की और हम पर धूप डालने की जरूरत नहीं है. अपनी रेस को हमारे ऊपर पोर करने की जरूरत नहीं है. क्लियर. मुझे लगता है कि तुम बहुत थक गए हो. तुम्हारी इतने अरसे से रूटीन में जाते हो, पागलों की तरह चक्कर लगाते हो पूरी दुनिया का. तुम्हें पता नहीं है कि सारी दुनिया जो है यहाँ एक बेड पर है. मेरी बिलवेड जो है वो पूरी दुनिया है, जमीन है, और मैं उसका सौल अकेला प्रिंस हूँ. बजाय इसके कि पूरी दुनिया का चक्कर लगाने के तुम मेरे कमरे में आया करो, बस कमरे में चक्कर लगा के चले जाया करो. समझो कि पूरी दुनिया पर चक्कर लगा लिया तुमने. ठीक. नाउ ही इज आल्सो डिस्कसिंग द मेटाफिजिकल थिंग कि सूरज, तुम आया करो मेरे कमरे में, मेरे कमरे बस राउंड किया करो और चले जाया करो. बस समझो कि सारी दुनिया का चक्कर लगा ले. क्यों? ऑल द वर्ल्ड इज ओवर देयर ऑन माय बेड. पूरी दुनिया मेरे बिस्तर पर है. यहाँ पर मेरी बिलवेड है और मैं यहाँ पर प्रिंस इसका मौजूद हूँ. मेरी जो बिलवेड है शी इज द अर्थ. पूरी दुनिया की जमीन यही है, सबसे प्रीशियस चीज है. ये है सनराइजिंग. ऑर्डर गो एंड कैच द फॉलिंग स्टार. जा और गिरता हुआ तारा थाम ले. कोई कहता है कि एक शख्स किसी दरख्त से बच्चा पैदा कर सकता है मुकाबला. जानवर कहता है कि कोई शख्स किसी दरख्त से, किसी ट्री से बच्चा पैदा कर सकता है. कोई शख्स चुड़ैल के पांव काट के अपने पास रख सकता है, उसके बाद मौजूद हो सकते हैं. किसी ने जलपरी का गीत भी सुना होगा. कोई ये नहीं बता सकता है कि माजी के साल कहाँ गए हैं. ठीक. ये सारी चीजें पॉसिबल है, हालांकि ये सारी चीजें इम्पॉसिबल है. कोई कहता है ये सारी चीजें पॉसिबल है, एक चीज पॉसिबल नहीं है. क्या? अगर एक आदमी एक हॉर्स पर 10,000 दिन और 10,000 रातें एक हॉर्स पर बैठे पूरी दुनिया का चक्कर लगाए, और उस शख्स के अंदर ये एबिलिटी हो कि वो छुपी हुई चीजों को भी एनालाइज कर सकता हो, मिस्टीरियस चीजों को भी पहचान सकता हो, उसके अंदर ये एबिलिटी भी हो, 10,000 साल, 10,000 दिन, 10,000 रातें वो हॉर्स पर बैठेगा, दुनिया का चक्कर लगाएगा, वापस आएगा, बाल उसके सफेद हो चुके होंगे, और वो कहेगा हाँ पॉसिबल है कि कोई शख्स दरख्त से बच्चा पैदा कर सके. पॉसिबल है कि इससे के बाद चुड़ैल के कटे हुए पाँव रखे हुए. पॉसिबल है कि किसी के पास
किसी ने मैरी मेड का यानी कि किसी ने जलपरी का गीत सुना हो, दैट इज पॉसिबल। लेकिन वो कहेगा एक चीज पॉसिबल नहीं है, ना मैंने कहीं देखी है ना मैंने सुनी है, मैं 10,000 दिन और 10,000 रातों में, वो क्या चीज नहीं देखी कि कोई औरत खूबसूरत भी हो और लॉयल भी हो, फेथफुल भी हो, ये मुमकिन नहीं। अगर किसी ने देखी हो एक औरत ऐसी जो लॉयल भी हो, खूबसूरत भी हो, तो मुझे आकर बताए, मैं उसके पास हज करने जाऊंगा ऐसी औरत के पास, लेकिन नहीं जाऊंगा कहता है। क्योंकि नहीं कहते, बताओगे भी सही, नहीं जाऊंगा। क्यों? वो कहते जब आप मुझे लेटर लिखोगे कि डॉक्टर साहब आ जाइए, चाहे वो औरत 7 वाले गेट पर भी रहती हो, 7 वाले दरवाजे पर भी रहती हो, फिर भी नहीं जाऊंगा। आप खत लिखेंगे डॉक्टर साहब 7 ही रहती है औरत, आ जाइए, मैं जब तक पहुंचूंगा वहां पर वो 2-3 से फिर चुकी होगी। Actually, there is no possibility of women who is chaste and beautiful at the same time, loyal and beautiful, ये women नहीं मिल सकती, impossible है, धन के नजरिए से। Because he was in this age where Shakespeare was saying that frailty thy name is women। वो उस स्टेज में बैठा हुआ है जहां पर women को इस तरह ट्रीट किया जा रहा है कि frailty thy name is women। तो मैंने कहा था कि women को ट्रीट जब करता है तो वो मूड पर डिपेंड करता है। ये बात अहम है, ये जो बातें मैं आज कह रहा हूं ये आपको एग्जाम में किसी के ऊपर भी सवाल बन सकता है। तो फ्राइडे thy name is women, इस बेस पर उसने ये पोएम कह दी। उसके मूड है, जिस मूड में होता है उस मूड के। अभी वो कह रहा था कि वो पूरी कायनात है, पूरी दुनिया मेरे लिए है पिछली पोएम में, अभी वो कह रहा है कि वो कभी लायल हो ही नहीं सकती, तो उसके मूड पर डिपेंड करता है। सेम लाइक उसकी पोएम वेलडेक्शन फॉरबिडन मॉर्निंग, उसमें वो पोएट कहता है कि वो अपने बिलवड से दूर हो रहा है, किसी और कंट्री में जा रहा है, तो अपने बिलवड को मना करता है कि तुम मॉर्निंग ना करो, तुम माता मत करो। क्योंकि वो कहता है देखो हमारी जुदाई नहीं है, हम दोनों कंपस की तरह हैं। तुम घर में बैठी हो तो मैं जा रहा हूँ सैर करने के लिए, और मैं जा रहा हूँ काम से, काम करने के बाद दायरा कंप्लीट करने के बाद वापस आऊंगा और फिर तुमसे मिल जाऊंगा। क्लियर? उसने कहा हम तुम ऐसे हैं जैसे कि सोना होता है, सोने को जितना कूटा जाएगा वो ऐसे फैलता जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं। मैं जहां भी जाऊंगा तो ये सोना ऐसे एक्सपेंड हो रहा है, टूट नहीं रहा। हमारा तुम्हारा रिलेशन टूटने वाला नहीं है, इसलिए तुम रो, तुम माता मत करो, पर वो परेशान ना हो। फिर अपनी बिलवेड यानी कि अपनी वाइफ एंड मोर को कहता है वेलडिक्शन फॉरबिडिंग वीपिंग में, वो कहता है कि तुम आंसू मत बहाओ, ठीक, तुम आंसू बहाते हो, मैं आंसू बहाता हूँ, मैं आंसू बहाता हूँ नुकसान हो जाता है। नुकसान कहते हैं मेरा आंसू जब यहाँ पर आता है तो इस आंसू के अंदर तुम्हारी तस्वीर बन जाती है, तुम्हारी तस्वीर मेरे आंसू में, और आंसू नीचे गिरता है तो नुकसान भी बड़ा हो जाता है। ठीक है? जिस तरह एक सिक्के के ऊपर, कॉइन के ऊपर स्टैंप लगी हुई होती है तो वो अहम हो जाता है। स्टैंप जब लग जाती है तो उसके ऊपर बाबा गुरु नानक बैठे हुए हों या उसके ऊपर बाबा कैरल बैठे हुए हों, वो अहम हो जाएगा, जिसके ऊपर स्टैंप पर तस्वीर आ जाएगी। तो वो कहता है कि मेरे इस टीयर के ऊपर, आंसू के ऊपर भी तुम्हारी तस्वीर आती है, तो तुम मेरे आंसू के गिरने के साथ तस्वीर भी गिर जाती है। क्लियर? एक्सटेसिक वो कहता है कि लव जो है वो जिस्म से शुरू होता है। पहले जिस्म, सेंसेस, हमारी ये फिजिकल ब्यूटी, हमारी ये फिजिक जो है जिसको अट्रैक्ट करती है, ये अट्रैक्ट करने के बाद ये करीब जब आते हैं तो फिर साउल की मोहब्बत शुरू हो जाती है, फिर रूह मोहब्बत करने लग जाते हैं। ट्रू लव इज द लव ऑफ साउल, नॉट द फिजिकल बॉडीज, दैट इज द कंसेप्ट इन एक्सप्रेस। ओके, नक्टर्नल अपॉन सेंट लूसीज डे बीइंग द शॉर्टेस्ट डे, ये उसकी पोएम है। इसके अंदर पोएट कहता है, पोएट असल में सेंट लूसी के दरबार पर गया हुआ है जहां पर रात मनाई जा रही है, सेंट लूसी का उर्स है वहां पर सेंट लूसी को सोचता है। और सेंट लूसी क्योंकि शी इज द गॉडेस ऑफ विंटर, विंटर की गॉडेस है, तो शॉर्टेस्ट नाइट है उसकी, वहां पर जाकर वो अपने बिलवेड को याद करता है, साथ अपने बारे में सोचता है, और वो कहता है कि उसकी यानी कि एंड मोर जो उसकी बीवी है, बिलवेड है, उसकी डेथ हो चुकी है, वो उसकी डेथ को सारा कंसीडर करता है। दैट इज इन द सेंट लूसीज डे। एनिवर्सरी,
ये पोएट की और एन मोर की ये शादी की एनिवर्सरी है, शादी की तकरीब है, जैसे साल बाद मनाए सालगिरह करते हैं, शादी की सालगिरह। वो कहता है कि हम एक साल गुजर गया है, सूरज भी एक साल बूढ़ा हो गया है, जमीन भी बूढ़ी हो गई, हर चीज दुनिया की बूढ़ी होगी एक साल। मेरी बिलवड और मैं एक साल बूढ़े नहीं हुए, बल्कि हमारी तो मोहब्बत इंक्रीज हुई है। जब मोहब्बत इंक्रीज हो तो फिर बूढ़े नहीं हो रहे, बल्कि मोहब्बत तो बढ़ रही है। हाँ, जब हम मर जाएंगे तो फिर हम अलग हो जाएंगे, लेकिन फिर भी अलग नहीं होंगे अगर हम दोनों को एक ही कब्र के अंदर दफना दिया जाए। ठीक है। पोएट बहुत जज्बाती है, पोएट बहुत जज्बाती है। तो मरने के बाद भी किसी किस्म की सेपरेशन, और वैसे भी उसने खुद कहा है कि वैमन लॉयल और ब्यूटीफुल नहीं हो सकती, और वो इसीलिए कहते हैं ना कि कहीं ऐसा ना हो कि डिसलॉयल्टी हो जाए ना सेपरेट। ओके। नाउ रिलीजियस पोएट्री के अंदर, डिवाइन पोएट्री के अंदर वो कहता है बैटर माय हार्ट थ्री फेस्ड गॉड, तीन चेहरों वाले खुदा कि मेरी दिल को बैटर कर, इसको मार। असल में पोएट कहता है कि मैं बहुत गुनाहगार हूँ। पोएट को आखिर में आइडिया हो गया है कि वो बहुत गुनाहगार है और उसकी पनाह होनी चाहिए, उसने सारी जिंदगी शैतान के साथ ताल्लुक रखा है। पोएट सिंपल कहता है, आर्गूमेंट देता है, वो कहता है कि एक बात तो ये है, चले ये बात मैं आपको बाद में बताता हूँ, मेरे ख्याल में लेक्चर को वाइंड अप कर दें। ओके, सो नाइस ऑफ यू।